So today we'll be starting up with transportation in living organisms. तो बच्चे इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. We'll be dividing this into two parts. First is transportation in living organisms, that is humans. Specifically we'll be talking about human beings की transportation कैसे होती है, जिसमें बच्चे हम circulatory system, blood, heart की mechanisms इसको डिस्कस करेंगे. Then the second part is transportation in plants. प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है वो हमारा सेकंड पार्ट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू फर्स्ट बिगिन अप विद ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, और यू कैन स्पेसिफिकली से ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, ऑलराइट, वी नीड टू स्पेसिफिकली रिमेंबर, हमें क्या याद रखना है कि when you talk about transportation in human beings, इसके अंदर बहुत सारे components आएंगे. All right, we'll be talking about blood vessels. These are pipe-like structures which transport blood. We'll be talking about structure of heart. Heart के बारे में बात करेंगे. Heart के जो basic components हैं उनके बारे में बात करेंगे और वो blood को transport करने में कैसे help करते हैं. We'll be talking about circulatory fluids, that is blood and lymph. Blood और lymph के बारे में बात करेंगे, उनके क्या functions हैं वो हम करेंगे discuss. Okay, so it will be divided into different parts. Transportation को बच्चे हम circulatory system भी कह देते हैं. All right, so transportation in human beings, it will be discussed under different categories. All right, तो बच्चे जो हम पहली category discuss करेंगे that would be blood vessels. The first category that we'll be discussing is blood vessels. अब बच्चे when you talk about blood vessels क्या है? Blood vessels are pipe-like structures, you can say tube-like structures which help in transportation of blood in living organisms. Okay, specifically अगर हम humans की बात करते हैं, humans have a closed circulatory system. Humans का क्या होता है? Closed circulatory system है. That means blood never comes in direct contact. Blood never comes in direct contact with the tissues or organs. हमारा blood कभी भी direct contact में नहीं आता. Alright, tissue spaces या organs के साथ. इस system को हम कहते हैं closed circulatory system. So the first component that we'll be discussing is blood vessels. Okay, blood vessels discuss करेंगे सबसे पहले. और ब्लड वेसल्स को हम बच्चे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ओके, सो इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डू दे फंक्शन. सो ब्लड वेसल्स, व्हाट वी कैन राइट अबाउट देम, हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दे आर ट्यूब्स और pipes, or you can say tubes or pipe-like structures. They are tubes or pipe-like structures. They are tubes or pipe-like structures which help to carry blood. Structures which helps to carry blood. Okay, अब इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. we'll be dividing them into three categories. First is arteries, second is veins, third is capillaries. ये हमारी ब्लड वेसल्स की तीन कैटेगरीज हैं. अब अच्छा, ये जो तीन कैटेगरीज हैं, इट इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन. इनके बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ऑलराइट, तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें, ऑलराइट, और फंक्शंस को देखें, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टरीज, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स. Arteries are blood vessels which are responsible for carrying blood away from the heart.
आर्टरीज किस तरीके से फंक्शन करते हैं? दे विल ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. These are blood vessels which carry blood away from the heart. What about veins? Veins, they will carry blood towards the heart. Veins क्या है? ये वो blood vessels हैं जो heart की तरफ blood को लेके जाते हैं. Okay? What are capillaries? बच्चे capillaries are very thin walled blood vessels. ये बहुत thin walled blood vessels हैं which are present in between arteries and veins. Arteries और veins के junction पे capillaries present है. All right, तो they link arteries and veins together. और बच्चे exchange of gases, nutrients सब किस जगह पे होता है? It occurs between tissues and capillaries. Capillaries के अंदर ही exchange हो रहा है materials का tissues के साथ. अब बच्चे when you talk about arteries, because they are carrying blood away from the heart, उनके अंदर blood बहुत high pressure में flow करता है. तो बच्चे उस चीज को resist करने के लिए उनकी जो walls होती हैं, the walls of arteries are very thick. Okay, arteries have very thick walls. उसके पीछे रीजन क्या है? they carry blood under very high pressure. उनके जो आप structural differences अब देखोगे, it is based on the pressure of the blood. arteries के अंदर blood बहुत high pressure में आता है, इसलिए इनकी walls बहुत thick हैं. What about veins? Veins are responsible for carrying blood towards the heart. वेन्स क्या करती हैं? वेन्स ब्लड को हार्ट की साइड लेके जाती हैं. तो इनकी जो वॉल्स हैं वो उतनी थिक नहीं है, दे आर थिनर. वेन्स की जो ओवरऑल थिकनेस है वो आर्टरीज के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड है वो बहुत कम प्रेशर पे फ्लो करता है. व्हाट अबाउट कैपिलरीज? बच्चे कैपिलरीज के अंदर तो सिंगल वॉल्ड होती है, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स. ये बच्चे हमने रेस्पिरेशन के अंदर जब हम एल्वियोलाई डिस्कस कर रहे थे, उधर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर आप कैपिलरीज को देखो, कैपिलरीज के अंदर सेल वॉल की थिकनेस कितनी होती है? इट इज जस्ट 1 सेल थिकनेस, और उसकी वजह से वो एक्सचेंज कर पाते हैं मटेरियल्स को और गैसेस को. ऑलराइट, आर्टरीज देयर ल्यूमन इज स्मॉल, वेन्स देयर ल्यूमन इज लार्ज. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय ल्यूमन. ऑलराइट, आई विल जस्ट ड्रॉ अ रफ डायग्राम फॉर यू. बच्चे अगर आप आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन देखो, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं. ओके, आर्टरीज की जो वॉल्स हैं, वॉल्स आर वेरी थिक इन आर्टरीज. ओके, एंड व्हाट इज ल्यूमन? ल्यूमन इज द कैविटी थ्रू विच ब्लड फ्लोज. तो ल्यूमन कैविटी है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है. तो ल्यूमन इज वेरी नैरो, इज वेरी नैरो. ये किसके अंदर होता है? आर्टरी के अंदर. ऑलराइट, अब अच्छा इफ यू कंपेयर इट विद अ वेन, अगर आप इसे वेन के साथ कंपेयर करो, तो वेन का जो ल्यूमन है, वेन का जो ल्यूमन है, इट इज वाइडर. वेन का जो ल्यूमन है, यू कैन से इट इज द कैविटी थ्रू विच ब्लड फ्लोज, इट इज वाइडर. और इसकी जो आउटर वॉल्स हैं वो थिन है. आउटर वॉल्स आर थिन. तो ये हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखेंगे अगर हम आर्टरी और वेन का क्रॉस सेक्शन देखें. ऑलराइट, अगर हम आर्टरी और वेन का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें वॉल्स जो हैं आर्टरी की बहुत थिक दिखाई देंगी. ल्यूमन पार्ट वो है जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर. ऑलराइट, तो आर्टरी के अंदर ल्यूमन क्या है? बहुत नैरो है. वेन के अंदर जो ल्यूमन है वो बहुत वाइड है. ऑलराइट, हाँ जी सुनिष्ठ. सर जो लुमेन है सर, सर वो दोनों में होता है, आर्टरी और वेन्स में. सर वही सर वो मिडिल पार्ट होता है ना सर, वेन्स का उसका ब्लड वेसल्स का. मुझे ल्यूमन जो है, ल्यूमन हम टर्म यूज कर रहे हैं इनर पार्ट ऑफ ब्लड वेसल के लिए, जहां से ब्लड फ्लो करता है. तो ये दोनों के अंदर है, ये कैपिलरी के अंदर भी है. ठीक है, डिफरेंस ये है कि आर्टरी के अंदर ये जो ल्यूमन है ये बहुत नैरो है क्योंकि उसकी वॉल बहुत थिक है. वेन्स के अंदर जो ल्यूमन है वो वाइडर है क्योंकि उनकी वॉल्स बहुत थिन है कंपैरिजन में, और उनके अंदर प्रेशर भी बहुत कम है ब्लड का, क्योंकि वो ब्लड को सिंपली क्या कर रहे हैं? दे आर कैरिंग इट टुवर्ड्स दी हार्ट. ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ जी आकृति. गुड इवनिंग सर. हाँ जी. सर जो हमारे हाथों में से जो
जो हम ब्लड वेसल को देख सकते हैं सर वो कौन सी होती है? बच्चे कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर जो हमारे हाथों में सर जो ऊपर हम अपने नेक डाई से देख सकते हैं ना सर वो कौन सी ब्लड वेसल होती है? जो आप अपनी बॉडी में देख पाते हो ये सर ऊपर से वो वेन्स है बेटा। ओके सर। वेन्स आर सुपरफिशियल, वो डिफरेंस हम अभी करेंगे आगे, डिफरेंसेस में है ये, ठीक है। ओके सर। तो बच्चे ल्यूमन जो है वेन के अंदर, ल्यूमन जो है वेन के अंदर वो बहुत लार्ज है, वाइडर है। अब बच्चे अगर आप कैपिलरी के साथ कंपेयर करोगे ल्यूमन, ल्यूमन इज स्मॉल, ऑब्वियसली इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो यहाँ ल्यूमन बहुत स्मॉल है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बच्चे, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बच्चे क्योंकि आर्टरीज जो हैं ब्लड को, आर्टरीज जो हैं ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर लेके जा रहे हैं, तो इनके अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब है? जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पर बच्चे यहाँ एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है, दैट इज पल्मनरी आर्टरी। ओनली वन आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज पल्मनरी आर्टरी। ओके, अभी हम डबल सर्कुलेशन करेंगे तो उसमें ये डिस्कशन आएगी दोबारा, आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। बच्चे सिर्फ यही एक आर्टरी है पूरे ह्यूमन बॉडी में जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ओके, व्हाट अबाउट वेन्स? बच्चे वेन्स ऑलवेज कैरी इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये ब्लड को कहां लेके आते हैं? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स दी हार्ट। पर बच्चे एक एक्सेप्शन है यहाँ, पल्मनरी वेन। ओके, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, VEIN होना चाहिए, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ठीक है, इट शुड बी VEIN, वेन। सो पल्मनरी वेन, it is the only vein in the human body which carries oxygenated blood। नहीं तो सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब बच्चे व्हाट अबाउट कैपिलरीज? कैपिलरीज आर फाउंड एट जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज क्या करती हैं? आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। तो बच्चे जो इनिशियल पार्ट है कैपिलरी का, द इनिशियल पार्ट ऑफ कैपिलरी, इट विल कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो उसका लास्ट पार्ट है, जैसे जैसे ब्लड आगे फ्लो करेगा, it will contain deoxygenated blood. If you remember exchange in alveoli, alveoli के अंदर क्या हो रहा था? पहले deoxygenated blood enter कर रहा था, बाद में ब्लड ऑक्सीजनेट होके alveoli से बाहर जा रहा था। ऑलराइट, पर बच्चे हमें जनरल कैपिलरीज के बारे में बात करनी है जो टिश्यू को सराउंड कर रही है। ओके, उसमें क्या होता है? जब ब्लड कैपिलरी के अंदर एंटर करता है, जो टिश्यू स्पेसेस में ब्लड जा रहा है, ओके, वहां क्या होता है? इनिशियल पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पर जैसे जैसे ब्लड आगे जाएगा इट विल गेट डीऑक्सीजनेटेड। उसके पीछे रीजन क्या है? वहां ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आर्टरीज के अंदर सेमी लूनर वाल्व्स एब्सेंट होती हैं। अब अच्छा, व्हाट आर वाल्व्स? वाल्व्स आर स्पेशल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर वाल्व्स? वाल्व्स जो होते हैं बच्चे, वाल्व्स क्या करते हैं? they are flap like structures which help to keep blood flowing in one direction. okay, अब बच्चे आर्टरीज के अंदर वाल्व्स की जरूरत नहीं है। अब उसके पीछे क्या रीजन है? इनके अंदर ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है, तो ब्लड वापस ना आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इनके अंदर, तो आर्टरीज के अंदर वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। दे कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर, सो वाल्व्स आर एब्सेंट। व्हाट अबाउट वेन्स? बच्चे वेन्स के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। These are flap-like structures which will push blood towards the heart. और इन valves की वजह से क्या होता है? blood veins में वापस नहीं जाता। What about capillaries? बच्चे capillaries के अंदर भी valves absent होते हैं। Capillaries valves are absent because they are present at junction of arteries and veins, तो इनके अंदर भी valves की जरूरत नहीं है। What about pressure? देखो pressure की वजह से ये सारे structural differences थे। Arteries, pressure of blood is high. Veins, pressure of blood is low. What about capillaries? Pressure is falling or pressure decreases. Why? बच्चे जब ब्लड आर्टरी से वेन्स की साइड जा रहा है तो बीच में कैपिलरीज हैं, तो जब आर्टरी कैपिलरी को ज्वाइन करेगा तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। जैसे जैसे कैपिलरी में ब्लड आगे बढ़ेगा
what is going to happen? Pressure is going to decrease. All right. So in the initial part of the capillary, what we will see, pressure is high because blood is exiting arteries and it is reaching the capillary. जैसे जैसे ब्लड आगे जाएगा क्या होगा, उसका प्रेशर कम होता जाएगा. What about flow of blood in artery? Blood flow is rapid. यहाँ ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है. What about veins? Blood flow is slow through veins. ब्लड जो वेन्स के थ्रू फ्लो कर रहा है वो बहुत स्लो होता है. What about capillary? यहाँ भी ब्लड फ्लो बहुत स्लो है. ऑलराइट. तो बच्चे ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं. एक बच्चे आप इनके लोकेशन के बारे में भी लिख सकते हो. ओके एक आप इनके लोकेशन के बारे में भी डिफरेंस लिख सकते हो. अगर हम बच्चे आर्टरी को देखते हैं, जैसे आकृति ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हम जनरली ऊपर ब्लड वेसल देख पाते हैं वो कौन सी होती है. बच्चे जनरली जो हम सुपरफिशियल ऊपर ब्लड वेसल्स अपने देख पाते हैं बॉडी में, वो कौन सी होती हैं? वेन्स होती हैं. वेन्स के अंदर प्रेशर बहुत कम होता है तो उनकी लोकेशन सुपरफिशियल है. पर आर्टरीज के अंदर क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो बच्चे हम उनकी जनरल लोकेशन बॉडी के अंदर कहां देखते हैं? दे आर लोकेटेड डीप इनसाइड दी मसल्स, मसल्स के नीचे. और बच्चे ये लोकेशन इसलिए होती है ताकि क्या हो सके, वो प्रेशर को विथस्टैंड कर सके. सो वेन्स आर सुपरफिशियल, आर्टरीज आर डीप सीटेड. वो क्या के लिए है? ताकि वो प्रेशर को क्या कर सके, विथस्टैंड कर सके. हाँ जी सुनिष्ठ. सुनिष्ठ सर जो हमें ब्लड प्रेशर पता लगता है आजकल की इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, सर वो दो तरह का होता है, एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है. सर उनमें से जो सर वो ज्यादा होता है सर वो आर्टरीज का होता है, और जो नीचे वाला होता है सर वो वेन्स का होता है. बच्चे आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि ये सारे टॉपिक्स जो है हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. आई थिंक आप में से काफी सारे बच्चे ये चैप्टर स्कूल में पढ़ चुके हैं तो शायद वो डाउट्स आपके माइंड में है. ठीक है. सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, वर्किंग ऑफ हार्ट, हमने अभी सब कुछ करना है. ठीक है. तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. आप सब ना आगे भाग रहे हैं. ठीक है. तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, वी विल बी रीचिंग देयर. वहीं जाएंगे हम. अभी इसके बाद हमने वर्किंग ऑफ हार्ट ही करना है. आदिति सर आप प्लीज एक बार कैपिलरीज के बारे में सर डिटेल में बता दीजिए सर, उसमें काफी सारे कंफ्यूजन रहते हैं मुझे. आदिति इससे ज्यादा डिटेल में क्या बता सकता हूँ, मुझे बताइए. आपने इसमें सर कैपिलरीज बच्चे इससे ज्यादा डिटेल क्या होगी आप बताइए. देखिए आपके सामने टेबल है, आप मुझे बताइए आपको कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है. सर आप इसकी एक बार कैपिलरीज की लोकेशन बता दो. बच्चे देखो कैपिलरीज दे आर लोकेटेड बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. तो जहां भी टिश्यू स्पेसेस हैं वहां आपको कैपिलरीज मिलेंगी. ठीक है. ऑर्गन्स के चारों तरफ, टिश्यूज के चारों तरफ आपको कैपिलरीज मिलेंगे. बच्चे आपके आर्टरीज जो हैं दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग फर्दर एंड दे विल फॉर्म स्मॉलर ब्रांचेस. जहां आपके टिश्यू स्पेसेस आ गए, ऑर्गन्स आ गए, वहां आपको कैपिलरीज मिलेंगी. ठीक है. सेकेंडली इनकी वॉल की जो थिकनेस है वो बहुत कम है. दे आर सिंगल सेल थिक. थर्डली इनके अंदर वैल्व्स जो होते हैं वो एब्सेंट हैं. प्रेशर इनके अंदर कम होता जाता है जैसे जैसे ब्लड आगे फ्लो करेगा, क्योंकि ब्लड आर्टरी से एग्जिट करके किधर आएगा, कैपिलरीज के अंदर आएगा. तो प्रेशर विल डिक्रीज एज ब्लड फ्लोज थ्रू देम. ओके. इनके अंदर ही सारा मटेरियल का एक्सचेंज होता है. ठीक है. हमें इसी तरीके से याद रखना है. आई होप इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ऑलराइट बच्चे ये तो बहुत ज्यादा डिटेल है जो मैंने आपको बता दिया. इतना तो एनसीईआरटी की बुक में दिया ही नहीं है. ठीक है. तो हमें डिटेल देख के कंफ्यूज नहीं होना है. हमारी माइंड में ये क्लैरिटी रहनी चाहिए पहली चीज कि आर्टरी के अंदर ब्लड हमेशा हार्ट से दूर जाएगा, वेन्स के अंदर हमेशा ब्लड बॉडी से हार्ट की साइड आएगा, और आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, वेन के अंदर ब्लड प्रेशर लो रहेगा. उसके हिसाब से उनका स्ट्रक्चर है. क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसकी मस्कुलर वॉल जो है वो बहुत थिक है, उसकी लोकेशन जो है बॉडी के अंदर डीप है, इसके अंदर वैल्व्स की जरूरत नहीं है, इसमें ब्लड फ्लो तेज है. वेन के अंदर प्रेशर कम होता है तो इसको वैल्व की जरूरत है, इसकी वॉल की थिकनेस भी कम है, इसकी लोकेशन बॉडी में ऊपर की साइड है, सुपरफिशियल. ऑलराइट. ऐसे हमें डिफरेंसेस याद रखने. अगर हम इस तरीके से याद रखेंगे फिर कंफ्यूजन नहीं होगी. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
ठीक है, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। व्हाट अबाउट वेन्स? वेन्स के अंदर बचे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा एक्सेप्ट पल्मनरी वेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके ये अभी हम जब वर्किंग ऑफ हार्ट अभी डबल सर्कुलेशन करेंगे तो ये डिफरेंस अभी क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये थे हमारे बचे ब्लड वेसल्स। अब बचे आई विल जस्ट क्विकली मूव ऑन, वी हैव टू टॉक अबाउट द ह्यूमन हार्ट। अब बचे ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसके बिना हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा ब्लड फ्लो करेगा। ऑलराइट, सो व्हेन यू टॉक अबाउट द ह्यूमन हार्ट, ऑलराइट, ह्यूमन हार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चे, इट इज लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी। कुछ जनरल चीजें हैं बच्चे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट, इट इज लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी। जस्ट अ मोमेंट आलोक, कैपिलरीज आर सिंगल सेल थिक, सो दे आर माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। कैन वी सी देम थ्रू नेकेड आई और अ माइक्रोस्कोप इज नीडेड? बच्चे देयर साइज इज वेरी स्मॉल, डायमीटर बहुत छोटा होता है। Just imagine you want to see capillaries around alveoli. Alveoli is microscopic, तो उसके चारों तरफ जो कैपिलरीज है वो भी ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक है। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, आर्टरीज एंड वेन्स आर बिगर वेसल्स, तो वो तो इजिली दिख रही हैं। आप खुद सोचो, कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक ही होंगी क्योंकि दे आर, उनकी थिकनेस ही सिंगल सेल की है। और एल्वियोलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चे जिसको हम माइक्रोस्कोपिक मान रहे हैं, नेफ्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। तो बच्चे उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो भी माइक्रोस्कोपिक होंगी, तो वी नीड अ माइक्रोस्कोप। अगर आपको कोई भी बड़ा ब्लड वेसल दिख रहा है तो वो बच्चे आर्टरी का ही पार्ट होगा या वेन का ही पार्ट होगा। इट कैन नॉट बी अ कैपिलरी, यू कैन नॉट सी देम विद अ नेकेड आई। ठीक है आलोक, इज दैट क्लियर? ओके, ऑलराइट। तो बच्चे जब आप ह्यूमन हार्ट की बात करते हो, वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। ओके, लोकेटेड इन दी, ओके चेस्ट कैविटी नहीं बोलते हम, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। ये एक्चुअली करेक्ट बायोलॉजिकल टर्म है, थोरैसिक कैविटी। ओके, थोरैसिक कैविटी का मतलब है हमारी चेस्ट कैविटी। ऑलराइट, और बच्चे हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो है इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन दी सेंटर बिटवीन दी टू लंग्स। पर बच्चे हम कई बार बुक्स में क्या पढ़ते हैं, हम आपस में जब बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं और हार्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। बच्चे दैट इज एक्चुअली समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, योर हार्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन द लंग्स। पर बच्चे हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है? क्योंकि बच्चे उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो लोअर पोर्शन में ज्यादा है, और हमारा जो लोअर पोर्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है। पर हमें ये याद रखना है, आवर हार्ट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ टू लंग्स, इट इज नॉट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड or on the left side of the chest. It is located in between the two lungs at the center. हाँ, उसकी बीटिंग हमें कहाँ फील होती है? towards the left side, towards the left portion of the chest, क्योंकि उसका जो लोअर पोर्शन है वह मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है। ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, another very important thing that we need to remember about the human heart, it is a 4-chambered organ. ठीक है, it has 4 chambers. अभी बच्चे मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उससे पहले हम ये बेसिक पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लें। इट हैज 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स, और यू कैन से 4 पार्टीशंस दैट वी सी। इट हैज 4 चेम्बर्स, ऑलराइट। और ये 4 चेम्बर बचे कौन से हैं? इट हैज, ओके, इट हैज 4 चेम्बर्स, और इन 4 चेम्बर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं? ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ओके, ऑरिकल्स आर 2 upper chambers, 2 upper chambers are called auricles. All right, and lower chambers को हम क्या बोलेंगे? Ventricles. Ventricles are 2 lower chambers. बच्चे what do we mean by chambers? Chambers का मतलब है हार्ट के अंदर इंटरनल पार्टीशन है। Our heart is internally divided into 4 parts, 4 separate you can say portions. तो जो अपर 2 चेम्बर्स हैं, अपर 2 बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे बन रहे हैं, पार्टीशंस बन रहे हैं, उनको हम कहते हैं ऑरिकल्स।
लोअर चेंबर्स जो है उनको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स कहेंगे। ओके, आई विल जस्ट शिफ्ट टू द एनसीईआरटी बुक, यहां आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बच्चे दिस इज शोइंग द ह्यूमन हार्ट, ऑलराइट बच्चे, यू कैन क्लियरली सी द 4 चेंबर्स हियर। ओके, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस वन एंड दिस वन, ये जो मैंने कलर किया है बच्चे मार्कर से, these are the 4 chambers, all right। the upper 2 chambers, these two up, they are known as auricles, these are known as auricles बच्चे, you can call them auricles or you can call them atrium। okay, atrium singular है, अगर आप प्लूरल में बोलोगे it will be atria। okay, so right auricle, left auricle, और you can call it right atrium, left atrium। ठीक है, तो ये हमारे 2 चेंबर्स हो गए। उसके बाद 2 लोअर चेंबर्स हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाले। ओके, सो 2 लोअर चेंबर्स आर कॉल्ड राइट वेंट्रिकल्स, वन इज राइट वेंट्रिकल, ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोटिस करनी है। अगर आप नोटिस करो, अपर चेंबर्स की जो वॉल्स हैं दे आर नॉट वेरी थिक, ऑरिकल की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो ज्यादा थिक नहीं है, लोअर चेंबर्स की जो वॉल है वो ज्यादा थिक है। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, आई जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट यू आर एबल टू सी दिस पोर्शन। ये देखो, ये वाली वॉल्स देखिए, दे आर वेरी थिक। अब अच्छा, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन असर्शन रीजन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आल्सो। Why ventricles have thicker walls in comparison to auricles? तो बच्चे इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है बच्चे, ventricles are responsible for pumping out of blood। Okay, they pump the blood towards body, or you can say they are responsible for pumping the blood out of the heart। Okay, they are responsible for pumping blood out of the heart। This is the reason they have very thick walls। ventricles की जो walls है, especially अगर आप देखो left ventricle has a very thick muscular wall। why? Because it pumps blood out of the heart। lower chambers are very thick walled, पर बच्चे upper chambers की जो wall है वो ज्यादा thick नहीं है। इसके पीछे क्या reason है बच्चे? they are simply receiving blood from different body parts। वो क्या कर रहे हैं, blood को simply receive करते हैं, तो इनकी जो वॉल्स हैं वो ज्यादा थिक नहीं है। ओके, ऑरिकल्स हैव वेरी थिन मस्कुलर वॉल्स बिकॉज दे सिंपली रिसीव ब्लड, दे आर नॉट पंपिंग ब्लड टू बॉडी पार्ट्स। बट लोअर चेंबर्स, स्पेशली द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट हैज वेरी थिक मस्कुलर वॉल, क्योंकि बच्चे लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड पंप आउट होता है। टू जनरेट दैट फोर्स, इसकी जो वॉल है वो बहुत थिक है। ऑलराइट, आई होप दिस स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चे। अगर आप ध्यान से देखो, राइट साइड में आपको ब्लू कलर दिखाया है, लाइट ब्लू, और लेफ्ट साइड में आपको स्लाइटली रेड कलर का आपको ब्लड दिखाया है। ये जो हमें कलर दिखाया ना, इट इज डिनोटिंग ब्लड। अब बच्चे व्हाई दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों है बच्चे? आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, right side of the heart always has deoxygenated blood। this is the thing that we need to remember। right side of the heart, it always has deoxygenated blood। all right, और बच्चे ये जो रेड कलर दिखाया है आपको लेफ्ट साइड में, स्लाइटली रेड, लेफ्ट साइड में हमेशा कौन सा ब्लड रहता है? लेफ्ट साइड, it will always carry oxygenated blood। this is a very important difference, ये चीज याद रखनी है। right side of the heart, you will always see deoxygenated blood, whereas on the left side you will always see oxygenated blood। बच्चे ये ब्लड आपस में कभी मिक्स नहीं होता। this is a very important structural difference। okay, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है। right side of the heart, it has deoxygenated blood, left side of the heart, it always has oxygenated blood। ठीक है, okay, Anisha, you are absolutely right। blue one is denoting deoxygenated blood and slightly red is denoting oxygenated blood। ठीक है, ये हमें याद रखना है।
तो बच्चे यहाँ ब्लड जो है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहा, और इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, जिसकी सिग्निफिकेंस अभी हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट के अंदर ये जो 4 चेंबर्स हैं ये ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देते। ओके, हाँ जी अजीत। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सर, ये मिक्स क्यों नहीं होते सर? बच्चे, ये हार्ट के अंदर इस तरीके से फ्लो होता है कि ये आपस में मिक्स ना हो। इसकी बच्चे सिग्निफिकेंस है, अगर ये आपस में मिक्स हो जाएगा तो हमारी ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं होगी। यस। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन फिशेस। फिशेस के अंदर क्या है? फिशेस के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट है। सर उनका Okay. अपोजिट है सर, जैसे इनके लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं, उनके अंदर बच्चे क्या होता है, उनके अंदर सिंपली ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट गोज टू गिल्स, इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड, गिल से वो पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस उनके हार्ट में आता है। एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है बच्चे, पार्टली डिवाइडेड हार्ट है, 3 चेम्बर्ड, तो उनके अंदर ब्लड मिक्स हो जाता है, पर बच्चे उनके अंदर चल जाता है क्योंकि उनकी एनर्जी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। एंड आई थिंक आपको एक चीज ये भी पता होगी, एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड, तो उनकी एनर्जी डिमांड बहुत कम है। पर बच्चे हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे बर्ड्स और मैमल्स हैं, वी रिक्वायर अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। व्हाई? वी आर वार्म ब्लडेड, और हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर मेंटेन करना है तो हमें अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए। सर दैट इज ह्यूमन बॉडी पॉसिबल का ओनली, सर, that is एवरेज possible only if we have 4 chambered heart. सर ह्यूमन बॉडी का सर एवरेज टेम्परेचर सर 39 डिग्री होता बच्चे 36.9 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, है। 39 नहीं है, 36.9 37 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट, ओके Anisha, okay, how to remember diagram of circulation? बच्चे, I'll be showing you a very simple flow chart. अभी हम इसको करते हैं। Alright, I'll just summarize what important points we have learned. Okay, auricles have thin muscular walls. Auricles have thin muscular walls as they receive blood from body parts under low pressure. ओके बच्चे, ऑरिकल्स के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो बहुत लो प्रेशर के अंदर आ रहा है, तो इनकी वॉल्स बहुत थिन है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर हम वेंट्रिकल्स को देखें बच्चे, इफ यू टॉक अबाउट वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स। वेंट्रिकल्स के अंदर थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं, ओके, बिकॉज they pump blood away from the heart. Especially बच्चे लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर आप वॉल देखोगे, इट इज द थिकेस्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल इज द थिकेस्ट। उसके पीछे रीजन क्या है? इट इज पंपिंग ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी, तो उसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, right side of the heart always carries deoxygenated blood. Right side of the heart carries deoxygenated blood. Okay, whereas left side of the heart carries oxygenated blood. तो बच्चे, इनके अंदर जो ब्लड की मिक्सिंग है कभी नहीं होगी। राइट साइड में हमेशा क्या रहेगा? यू विल ऑलवेज सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, whereas left side of the heart you will always see what? Oxygenated blood. लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहेगा? Oxygenated blood. This is one important difference that we need to remember.
right side of the heart you will have deoxygenated blood, whereas on the left side you will always have oxygenated blood. Okay, Archisha, vena cava, we are just coming to it. अब हम double circulation discuss करने जा रहे हैं. I'll be talking about vena cava, I'll be talking about aorta, pulmonary artery, pulmonary vein, इन सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. Alright, बस थोड़ा सा भी और patience चाहिए and we will be just talking about it. Alright, okay. So बच्चे, I'll be picking a simple flow chart from here to show how blood flows. Okay, हम बच्चे अगर इस फ्लो चार्ट को यूज करें तो हमें डबल सर्कुलेशन बहुत इजीली समझ आएगी. ओके, ऑलराइट. तो बच्चे, दिस इज अ सिंपल फ्लो चार्ट व्हिच इज शोइंग हाउ ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द हार्ट. ओके, तो सबसे पहले बच्चे हमें क्या याद रखना है? राइट साइड. ओके, जस्ट अ मोमेंट. ओके, just a moment. It would be better if I write it down for you, तब आपको ज्यादा clarity आएगी. All right, just a moment. Okay, but what am I doing is I am simply drawing a flow chart to represent the flow of blood through the heart. बच्चे प्लीज रिमेंबर, हमारा हार्ट ऐसा नहीं दिखता है. It is just to make you understand how blood is flowing. Okay, blood कैसे हार्ट के थ्रू फ्लो कर रहा है, उस चीज को समझने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हम हार्ट के जो 4 चेंबर्स हैं उनको इस तरीके से शो कर रहे हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, समझ सकें. ऑलराइट, ओके. तो बच्चे, लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर हार्ट. ये हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स हो गए. ऑलराइट, अब बच्चे दिस पोर्शन, ये हमारा जो पोर्शन है अपर पोर्शन, दिस इज द राइट ऑरिकल RA. ये वाला पोर्शन हो गया लेफ्ट ऑरिकल LA. द लोअर पोर्शन राइट वेंट्रिकल RV, and this lower portion it will be called as left ventricle LV. ठीक है, I hope this is clear. Right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle. अब बच्चे हमने क्या सीखा था? Right side of the heart always carries deoxygenated blood. अब बच्चे राइट साइड में हमेशा deoxygenated blood क्यों है? इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. बच्चे, राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस राइट ऑरिकल, it is receiving blood. It is receiving blood from the biggest vein. यहां बॉडी की सबसे बड़ी वेन है. ऑलराइट, ऑलराइट, यहां बॉडी की सबसे बड़ी वेन है which is known as vena cava. Vena cava. Okay, what is the role of vena cava? This is what Archisha was asking. What is vena cava? Vena cava is the largest vein in the human body. और बच्चे इसका क्या रोल है? It is bringing deoxygenated blood. It brings deoxygenated blood from all body parts. Okay, it is bringing deoxygenated blood. Just a moment. Let me just write this here. What is the role of vena cava? Vena cava क्या रोल करता है? ठीक है, vena cava is bringing deoxygenated blood. It is bringing deoxygenated blood from all body parts. Okay, from body. और ये बच्चे ब्लड कहां से आ रहा है? पूरे बॉडी से आ रहा है थ्रू दी वेना कावा. अब बच्चे, वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी. ये याद रखना है हमें. वेना कावा इज एंटरिंग राइट ऑरिकल and it is the largest vein in the human body. It is bringing deoxygenated blood from all body parts. अब बच्चे, ये जो ब्लड है राइट ऑरिकल से किधर जाएगा? It will move into right ventricle. ये deoxygenated blood कहाँ जाएगा? It will move into right ventricle. बच्चे, blood cannot go into left auricle. राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड नहीं जा सकता.
ब्लड का रूट क्या है, वन वे फ्लो है फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल। यहाँ वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं, वैल्व्स आर प्रेजेंट हियर which will allow blood to only flow from right auricle to left auricle, sorry right auricle to right ventricle। तो बच्चे ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आएगा, ऑल राइट, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आएगा, ओके, तो यहां से ब्लड फिर बाहर जाएगा, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जा रहा है, ओके, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जा रहा है। यहां कौन सी आर्टरी है, यहां है पल्मनरी आर्टरी, ओके, पल्मनरी आर्टरी। इसका क्या रोल है, इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स, इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। हाँ जी गर्व, गर्व। Yes, sir, can you please repeat from which vein oxygenated blood enter? बच्चे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है अभी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी हमने नहीं देखा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, पूरा ब्लड कलेक्ट होके वेना कावा के थ्रू एंटर करता है राइट ऑरिकल में, ओके। Through vena cava, deoxygenated blood will enter right auricle from all the body parts. This blood will then flow into right ventricle. Right ventricle से बचे ये deoxygenated blood किधर जाएगा, towards the lungs, pulmonary artery। देखो pulmonary artery सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जिसमें deoxygenated blood है, और उसके पीछे रीजन क्या है, because it is carrying blood towards the lungs, ताकि इस ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाए। अब बच्चे once this blood reaches the lungs, वहां ये ऑक्सीजनेट होगा, ओके, एंड देन ऑक्सीजनेशन के बाद जो आपका ब्लड अंदर आएगा, कहाँ आएगा, इट विल मूव बैक टू लेफ्ट ऑरिकल। अब देखो मैं यहाँ रेड कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो बच्चे यहाँ कौन सी वेन है, यहाँ है बच्चे पल्मनरी वेन। This is the only vein in the human body which carries oxygenated blood. तो बच्चे this vein is coming from lungs, okay? और इसके अंदर कैसा ब्लड आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है oxygenated blood, oxygenated blood, all right? Pulmonary vein is coming from the lungs, all right? And it is carrying oxygenated blood into the left auricle. अब बच्चे from the left auricle ब्लड नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से बच्चे ब्लड एग्जिट करेगा, इट हैज टू मूव टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स, ऑलराइट, इट हैज टू मूव टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स। और यहां बच्चे आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, यहां आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है विच इज डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा। इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, ओके। ये आपको बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए याद रखना है, इट इज लार्जेस्ट आर्टरी। एंड बच्चे ये कहां से इमर्ज कर रही है, फ्रॉम वेयर इट इज इमर्जिंग, इट इज इमर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। और ये क्या रोल कर रही है, इट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। व्हाट इज द रोल ऑफ डॉर्सल एओर्टा, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑलराइट। अब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है बच्चे बहुत थिक होती है। रीजन, यहां से जो एओर्टा निकलती है बच्चे वो सारी बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, तो यहां मैक्सिमम प्रेशर जनरेट करना होता है। दिस इज द रीजन लेफ्ट वेंट्रिकल हैज अ वेरी थिक मस्कुलर वॉल, ऑलराइट। तो बच्चे दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। अब बच्चे अगर हम इस फ्लो चार्ट से याद रखें तो आपको समझ आएगा कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है। आई एग्री कि हमारा हार्ट ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा बॉक्स की तरह नहीं है, पर हाँ ब्लड का फ्लो ऐसे ही है, ब्लड बिल्कुल ऐसे ही फ्लो होता है, ओके। आई विल जस्ट टेक यू बैक टू द डायग्राम ऑफ द हार्ट। वहां अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, लेट्स ट्राई टू डिस्टिंग्विश दिस, ओके। हमने इसको कैसे डिवाइड किया है, ऑलराइट, विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ब्लड इज फ्लोइंग इनसाइड द हार्ट और विद इन द हार्ट।
ओके, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था। ऑलराइट बच्चे, दिस इज माय राइट साइड। अगर आप क्लियरली देखो, आई जस्ट पिक अप द ब्लू कलर। ऑलराइट, देखो यहां से ब्लड एंटर हो रहा है और यहां से ब्लड एंटर हो रहा है हार्ट के अंदर। ऑलराइट, यहां से ब्लड आया, ध्यान से पढ़िए यहाँ क्या लिखा है, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। ओके, ये कंबाइन होके वेना कावा जो है ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहां लेके आ रही है, इट इज एंटरिंग दी राइट ऑरिकल। फिर यहां से ब्लड नीचे गया राइट वेंट्रिकल में, और अगर आप ध्यान से देखो ब्लड बचे फिर यहां से राइट वेंट्रिकल से बाहर गया टुवर्ड्स दी लंग्स, इफ यू कैन क्लियरली सी। और यहां कौन सी आर्टरी है, ध्यान से देखिए, यहां कौन सी आर्टरी है, पल्मनरी आर्टरी। ऑलराइट, सो राइट साइड, राइट ऑरिकल इज रिसीविंग ब्लड, deoxygenated blood from all body parts with help of vena cava. This blood goes down into right ventricle. Right ventricle से ये blood बाहर आ रहा है through pulmonary arteries. और बचे pulmonary artery में deoxygenated blood है, ये blood कहाँ जा रहा है, towards the lungs. All right. Once the blood is oxygenated, all right, अब देखते हैं blood वापस कैसे आए। ओके, ये देखिए यहां लिखा हुआ है पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन्स, यहां से ब्लड एंटर हुआ, कहां आया, लेफ्ट एट्रियम में। ओके, आई होप यू आर एबल टू क्लियरली सी, ब्लड इज एंटरिंग लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम पल्मनरी वेन्स, यहां से ब्लड नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो ब्लड ऊपर से निकला एओर्टा, एओर्टा से पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो बच्चे सर्कुलेशन यही है, सिंपल, blood is entering right auricle from vena cava, which is deoxygenated blood, it moves into right ventricle, then from right ventricle blood is pumped towards the lungs through pulmonary artery, फिर pulmonary veins lung से oxygenated blood को कहां लेके आती हैं, left auricle के अंदर, left auricle से वो blood जाता है left ventricle में, then from dorsal aorta it is pumped to all body parts. Okay, so this is how blood is circulating. और इसी चीज को हमने सिंपल क्या किया है, इस तरीके से फ्लो चार्ट में बना लिया। बच्चे अगर हम इस फ्लो चार्ट को याद रखें, we'll be easily able to remember how blood circulates inside the heart. I hope this is clear now. Okay, बच्चे we need to remember कि जो मेजर आर्टरी की बात हो रही है जो निकल रही है हार्ट से टुवर्ड्स बॉडी पार्ट्स, that is aorta, that is vena cava. हार्ट के मसल्स के अंदर और छोटी आर्टरीज होती हैं which are called coronary arteries, but that is something which is out of syllabus as of now. हमें ये याद रखना है कि हमारी कौन सी मेन आर्टरीज और वेन जो हैं बॉडी के अंदर ब्लड को लेके आ रही हैं या हार्ट से बाहर जा रही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने नोटिस की है, एक सर्कुलेशन आपकी लंग्स की साइड है, एक सर्कुलेशन आपकी बॉडी के साइड है। अब बच्चे दिस सर्कुलेशन थ्रू दी ब्लड इट इज रेफर टू एज डबल सर्कुलेशन, इसको हम क्या रेफर करते हैं, दिस इज रेफर टू एज डबल सर्कुलेशन। ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? ओके बच्चे, इट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ट्वाइस फ्रॉम दी हार्ट, इट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड twice through the heart before being pumped towards body parts. अगर बच्चे आपको 1 मार्क की डेफिनेशन लिखनी है तो इससे इजी डेफिनेशन कोई नहीं है। It is circulation of blood twice through the heart before being pumped towards the body parts. अब इसको कैसे समझेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट साइड में, सर्कुलेट हुआ हार्ट के थ्रू, लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर वापस लेफ्ट साइड में आया दूसरी बार, फिर बॉडी पार्ट्स के पास गया। तो बच्चे थ्रू दी हार्ट ब्लड कितनी बार सर्कुलेट हुआ है, ट्वाइस, 2 times. ओके, दिस इज द रीजन इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसी रीजन से हम इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट बिफोर बीइंग पंप्ड
टूवर्ड्स दी बॉडी पार्ट्स। 2 बार आपका हार्ट के थ्रू ब्लड पास होगा बिफोर इट गोज टू दी बॉडी। हाँ जी आकृति। सर मेरा एक डाउट था सर, सर जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स की जो अदर ऑर्गन्स हैं सर, उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सर वो हार्ट में आता है। सर सर हार्ट भी एक ऑर्गन है सर, फिर उसका डीऑक्सीजनेटेड सब ब्लड कहाँ पे जाता होगा? बच्चे आप ये मतलब आप ये बोल रहे हो कि हार्ट के अंदर कहाँ मतलब आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो होगा ना सर, क्योंकि वो भी तो एक ऑर्गन है। तो सर फिर बच्चे देखो, हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर आता है। हार्ट के मसल्स को भी बच्चे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट दैट इज डन विद हेल्प ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन। हार्ट के अंदर भी बच्चे कोरोनरी वेसल्स हैं, वो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ डबल सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो बॉडी की तरफ हो रही है सर्कुलेशन। ठीक है बच्चे? यस सर। सर ऑलराइट। सर अभी जो आपने बोला कोरोनरी, सर क्या बोला आपने अभी? कोरोनरी सर्कुलेशन। ये सर, सर वो हार्ट में कहाँ पर होता है? बच्चे हार्ट की मसल्स के साथ एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके थ्रू कोरोनरी सर्कुलेशन है। सर वो किसी चैम्बर में ही होता होगा ना? देखो आकृति, बहुत सारी चीजें जो होती है ना आपके एक लेवल से बियॉन्ड होती हैं। हमें ये चीज समझनी है कि किसी चीज का कोई एंड नहीं है, ठीक है, पर हमें यह भी समझना है कि हमारे सिलेबस से रिलेवेंट क्या चीज है जो हम अभी समझ सकते हैं। बच्चे हार्ट तो मैंने आपको देखो कितने सिंपल तरीके से समझा दिया, पर वो आपके सिलेबस से रेलेवेंट है। अभी हमें फोकस करना है डबल सर्कुलेशन में। वी कैन नॉट मूव इनटू कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है? वो आपके सिलेबस से बियॉन्ड हो जाएगा बहुत ज्यादा, वो आपको समझ भी नहीं आएगा अभी, क्योंकि उसके अंदर बच्चे कोरोनरी आर्टरीज हैं, बहुत सारी चीजें और इन्वॉल्व है। ठीक है, तो प्लीज फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड डबल सर्कुलेशन। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम आगे सोचने लग जाए तो फिर हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाए। जो चीज हमें याद रखनी है वो भी हमें याद नहीं रहेगी, डबल सर्कुलेशन में भी कंफ्यूजन होगी आपको। प्लीज फर्स्ट ट्राई टू बी क्लियर अबाउट डबल सर्कुलेशन। अगर आप आगे जाके साइंस लेते हो, बायो लेते हो, तो कोरोनरी सर्कुलेशन भी आपको आ जाएगा। ठीक है, इट इज स्टेप वाइज। ओके ओके अनेशा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे होता है? दैट इज थ्रू साइनोएट्रियल नोड, SAN। ठीक है, हार्ट के अंदर बच्चे स्पेशल नर्व फाइबर्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं। अगेन समथिंग विच इज टेकन अप इन +1 बायोलॉजी, SAN, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हार्ट अपनी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए खुद ही मैसेज जनरेट करता है, उसको हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, SAN। पल्स मेकर कह देते हैं जिसको हम कॉमनली। ठीक है नेशा? ऑलराइट, ओके। सो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है बच्चे? डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट साइड में आया, वो पहले कहां जाएगा? लंग्स की साइड जाएगा। ऑक्सीजनेट होके वापस कहां आएगा? लेफ्ट साइड में। तो बच्चे आपका जो ब्लड है 2 बार फ्लो कर रहा है हार्ट के थ्रू, पहले राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर वो बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। व्हाट इज दिस सर्कुलेशन नोन एज? इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब बच्चे डबल सर्कुलेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज पल्मनरी सर्कुलेशन। फर्स्ट इज पल्मनरी सर्कुलेशन। बच्चे जब भी ये टर्म आएगा पल्मनरी, whenever you get this term pulmonary, आपको हमेशा याद रखना है दिस हैज समथिंग टू डू विद लंग्स, लंग्स के साथ रिलेटेड है। तो बच्चे दिस इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ deoxygenated blood. It is transport of deoxygenated blood from where? ये blood बच्चे कहां जाएगा? From where it will go? It is transport of deoxygenated blood from, किधर से? From right
ventricle. It is transport of deoxygenated blood from right ventricle to lungs. बच्चे लंग्स के पास ये ब्लड कैसे जाएगा? वाया पल्मनरी आर्टरी, via pulmonary artery. It is transport of deoxygenated blood from right ventricle to lungs via pulmonary artery and return of oxygenated blood and return of oxygenated blood from lungs to left auricle via pulmonary vein. तो बच्चे ये आपकी पहली सर्कुलेशन है. पहली सर्कुलेशन हमारी कैसे है? आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाएगा वाया पल्मनरी आर्टरी एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल वाया पल्मनरी वेन. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट सर्कुलेशन जो हमारे हार्ट के थ्रू हो रही है, दैट इज पल्मनरी सर्कुलेशन. सेकेंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. दूसरा सर्कुलेशन हमारा कौन सा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब अच्छा, सिस्टमिक सर्कुलेशन इज रेफरिंग टू सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी. ओके, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा कहां से ब्लड निकलेगा? इट विल मूव आउट फ्रॉम, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड. कौन सा ब्लड है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. It is transport of oxygenated blood. It is transport of oxygenated blood from left ventricle. बच्चे लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा वाया डॉर्सल एओर्टा. डॉर्सल एओर्टा से ब्लड बाहर निकलेगा. ओके, डॉर्सल एओर्टा से टुवर्ड्स बॉडी पार्ट्स एंड, और बच्चे बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड रिटर्न ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स राइट ऑरिकल. बच्चे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है? बॉडी पार्ट से टुवर्ड्स राइट ऑरिकल वाया कौन सी वेन यहां इन्वॉल्व होती है? वाया वेना कावा. वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन. तो बच्चे ये दो आपकी सर्कुलेशन है. सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल वाया डॉर्सल एओर्टा टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स and then return of deoxygenated blood from body towards right auricle via vena cava. ठीक है, तो ये दो इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन चल रही है. तो बच्चे इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन. अब बच्चे व्हाई डबल सर्कुलेशन इज यूजफुल, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? तो इसके पीछे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन. ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, कि इसका एडवांटेज क्या है? व्हाट इज इट्स एडवांटेज? बच्चे पहली चीज जो हमें याद रखनी है, इन डबल सर्कुलेशन व्हाट इज हैपनिंग?
आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, तो यहाँ बहुत एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है ब्लड की। ओके, तो सबसे पहला एडवांटेज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, oxygenated blood and deoxygenated blood, oxygenated blood and deoxygenated blood do not mix with each other. ओके, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे इसकी वजह से क्या होता है, this helps in providing sufficient amount of oxygen. This helps in providing sufficient amount of oxygen. Oxygen in birds and mammals. बच्चे 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर ही है। डबल सर्कुलेशन हम किसके अंदर देखते हैं, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, मैमल्स में ह्यूमंस भी आ रहे हैं। अब इससे क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, दिस हेल्प्स इन मीटिंग द एनर्जी डिमांड, दिस हेल्प्स इन meeting the energy demand of higher organisms। बच्चे हायर ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी डिमांड है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो दैट वुड बी ओनली पॉसिबल अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन, और यही रीजन है कि सिर्फ मैमल्स और बर्ड्स के अंदर ही डबल सर्कुलेशन है। अगर आप लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखो, जैसे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के अंदर भी डबल सर्कुलेशन नहीं है, एम्फीबियंस के अंदर डबल सर्कुलेशन नहीं है, फिशेस के अंदर डबल सर्कुलेशन नहीं है, सिंगल सर्कुलेशन होती है, क्योंकि उनके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट ही नहीं है। 4 चेम्बर्ड हार्ट इज ओनली प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स विच आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब है दे आर एबल टू, अर्चिशा यू आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर वार्म ब्लडेड। ठीक है ना, दे आर वार्म ब्लडेड। उसके पीछे रीजन क्या है, दे आर एबल टू मेंटेन देयर एनर्जी, देयर ऑक्सीजन डिमांड इज हाई। ओके, एक्वाटिक एनिमल्स, उनमें भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं? नहीं। अनीशा, इन फिशेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पाइसेस। पाइसेस के अंदर डबल चेम्बर्ड हार्ट है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, दैट्स इट। उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन है। ठीक है ना। अगर आप रेप्टाइल्स के अंदर देख रहे हो या एम्फीबियंस के अंदर देख रहे हो बच्चे, उनके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट हो गया, उसके अंदर ब्लड की मिक्सिंग है। रेप्टाइल्स के अंदर सिर्फ क्रोकोडाइल एक ऐसा एनिमल है जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट है, बाकी सारे रेप्टाइल और एम्फीबियन में 3 चेम्बर्ड है। उसके बाद बचे बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट है। रीजन, दे आर वार्म ब्लडेड, ओके, और उनके अंदर एनर्जी डिमांड ज्यादा है, सो दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। अनेशा, डॉल्फिन एंड व्हेल्स, दे आर मैमल्स, दे आर नॉट फिशेस, ये हमें याद रखना है। डॉल्फिन्स एंड मैमल्स, दे आर एक्वाटिक मैमल्स, दे आर नॉट फिशेस। ओके, फिश का जो हार्ट है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑलवेज, यस दैट इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बच्चे हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ पंप होता है, गिल्स की साइड। गिल्स में जब ब्लड जाएगा तो क्या होगा, इट विल गेट व्हाट, ऑक्सीजनेटेड। वहां से ब्लड कहाँ जाएगा, इट विल रीच टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देन अगेन बैक टू दी हार्ट। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर मिक्सिंग हो जाती है, एंड दिस इज द रीजन दे आर कोल्ड ब्लडेड, वो वार्म ब्लडेड नहीं है, तो उधर एनर्जी डिमांड कम है, तो उनके अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड चल जाता है।
मैमल्स और बर्ड्स के अंदर मिक्सिंग नहीं चल सकती, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बच्चा दिस इज हाउ ब्लड सर्कुलेट्स विद इन दी हार्ट एंड दिस एंड्स दी डबल सर्कुलेशन। यहाँ हमारा जो डबल सर्कुलेशन का पोर्शन है वर्किंग ऑफ दी हार्ट इज ओवर। ऑलराइट, ओके, आई थिंक देयर वाज वन क्वेश्चन। Ajit, rat is a mammal, so it will have a 4-chambered heart. Rat is a mammal. Okay. Okay, Anesha, heart is made up of special muscles called cardiac muscles. ये आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में पढ़ा होगा। एंड कार्डियक मसल्स डू नॉट टायर, वो कभी थकती नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, आई थिंक ये आपने लास्ट ईयर टिश्यूज के चैप्टर में पढ़ा होगा। कार्डियक मसल्स दे आर स्पेशल मसल्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट एंड दे डू नॉट टायर। अगर बच्चे वो थक जाएंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। बिफोर आवर बर्थ, हमारे बर्थ से पहले से हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है। एंड बच्चे जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है तब तक आपका हार्ट बीट करेगा। जिस दिन हमारा हार्ट थक जाएगा उस दिन हम थक जाएंगे। ऑलराइट, तो ये चीज हमें याद रखनी है। ऑलराइट, ओके। ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट बच्चे।